हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वहीद चौधरी और पाइथन कोर्स की सीरीज में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ दैट इज ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो वेलकम टू स्टडी सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। Operators in Python. So what are operators in Python? Operators in Python are the symbols that are used to perform some specific task. किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ डिवाइड करने के लिए, इसी तरह के कुछ अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? ऑपरेटर्स यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन? So there are 7 types of operator in Python. First is arithmetic operators, relational operators, assignment operator, logical operator, bitwise operator, membership operator और identity operator. अब इन ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन एक एक करके अच्छे से देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स करते क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. So arithmetic operator are used to perform the arithmetic operations. Arithmetic operations perform करने के लिए जो operators use होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है arithmetic operators. Arithmetic operations क्या होते हैं? जैसे addition, multiplication, division. So if you want to add two numbers, so you have to use a plus b. So plus is an operator that is used for addition. If you want to subtract one number from another number, you have to use minus sign to perform the subtraction. The third one is division. If you want to divide two numbers, if you want to divide one number with another number, then you have to use this division operation. Then to multiply two numbers, we have to use star. Then modulus operator is used to find the remainder. If you want to find a remainder, you want to divide a number with another number and you want to find a remainder, you have to use this operator, that is modulus operator. Then next is floor division, or we also called it integer division. नाउ सपोज अगर आपको एक नंबर है उसको डिवाइड करना है एंड यू डू नॉट वांट द कंप्लीट डिवीजन रिजल्ट, यू ओनली वांट द क्वोशिएंट, सो यू कैन यूज दिस ऑपरेटर. देन नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल. इफ यू वांट टू कैलकुलेट पावर, देन यू हैव टू यूज दिस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. अब मैं आपको एक एक ऑपरेटर को यूज करके दिखाऊंगा. जैसे सपोज यू हैव टू नंबर्स दैट इज 12 and another number is 13 and you have to perform addition. So 12 plus 13 is 25. Now you subtract one number from another number. Suppose 15 minus 12, that is 3. Now multiplication is 2 into 3, that is 6, and division 8 by 3. So it will give you a result of 2.66. Then next is modulus operator. So 8 modulo 3, the remainder will be 2. How I calculate this remainder? Suppose I divide 8 by 3, then 6 and the remainder will be 2. So the answer will be 2. The next is floor division. So this will give also 2. Why 2? Because quotient is 2. This will give remainder and this will give quotient, or we also called it as integer division. ये आपका ये डेसिमल वाला पार्ट हट जाता है और सिर्फ इंटीजर में आंसर आता है. Then next is exponential operator. So 2 exponent 3, 2 to the power 3, 2 to the power 3 is 8. तो ये हमारे क्या है? ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं. इनको समझने के लिए मैं आपको पाइथन के आईडीएलई में ले जाता हूं.
ये मैं अपना पाइथन आइडियली ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे मैं एक एक ऑपरेटर को आपको समझा के दिखाऊंगा। सो 2 + 3 आंसर विल बी 5, 4 - 3 the answer will be 1, then 2 into 3 the answer will be 6, then 4 divide 3 answer will be 1.333 and so on. Then modulus 4 modulo 3 the answer will be 1. Then integer division 8 by 3 the answer will be 2. that will already see, ये हमने अभी देखा था। इसके अलावा और कौन सा ऑपरेटर होता है? वी हैव एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सो 2 to the power 3 आंसर विल बी 8। आई थिंक आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो दो ऑपरेंड से दो वैल्यूज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप देख सकते हो कि या तो वो इक्वल होंगी। तो इक्वलिटी चेक करने के लिए पाइथन में क्या होता है हमारे पास? डबल इक्वल टू। इवन किसी भी लैंग्वेज में आप जब जाएंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे और कंपैरिजन में आपको दो ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ये ए और बी, ये ऑपरेंड्स है। अगर दो ऑपरेंड्स की आपको इक्वलिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको डबल इक्वल टू यूज करना होता है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जब आप कंपैरिजन देखेंगे और देखना चाहेंगे कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो यू हैव टू पुट डबल इक्वल टू साइन। then this is the symbol for not equal to। अगर आप कहना चाहते हैं कि this number is not equal to this number, अगर ये नंबर इस नंबर के इक्वल नहीं है, then you have to use not equal to। then this is the symbol for greater than, this is the symbol for less than, this is used for less than equal to। तो लेस देन इक्वल टू में हमें दो रिजल्ट मिलते हैं। लेस देन इक्वल टू में दो रिजल्ट का क्या मतलब है? मतलब दो कंपैरिजन होती है। ये कब ट्रू हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा अगर ए बी से ग्रेटर है। ए बी से ग्रेटर है तब भी ये ट्रू हो जाएगा, और ए बी के इक्वल है तब भी ये ट्रू हो जाएगा। मींस ये दो केस में ट्रू होगा। कौन से दो केस में? या तो ए बी से बड़ा हो जाए या फिर ए बी के इक्वल हो जाए। दोनों ही केस में ये क्या हो जाएगा? ट्रू। जबकि ग्रेटर देन में सिर्फ एक ही केस में ट्रू होगा, अगर ए बी से ग्रेटर होगा तभी ये ट्रू होगा। ए बी से ग्रेटर होगा तभी ये ट्रू होगा। यहाँ पे दो केस आ जाते हैं, या तो ए बी से ग्रेटर हो जाए या फिर ए बी के इक्वल हो जाए। इसी तरह से लेस देन पे भी सेम काम होगा, या तो ए छोटा हो जाए बी से, ठीक है। यहाँ पे तो ये मैंडेटरी होगा कि ए बी से छोटा होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं होगा। यहाँ पे दो केस आ जाएंगे आपके, या तो ए बी से छोटा हो जाए या फिर ए बी के इक्वल हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, उनसे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू मैंने ली है 12 और बी की वैल्यू ली है मैंने 13, एंड नाउ आई एम चेकिंग ए इक्वल टू बी। तो इज ए इक्वल टू बी? क्या ए और बी दोनों इक्वल हैं? नहीं, ए और बी इक्वल नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। सिमिलरली अगर मैं चेक करूंगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या ए बी के इक्वल नहीं है? यस, दिस इज ट्रू बिकॉज ए इज 12 एंड बी इज 13। ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा? यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मुझे ट्रू। Now if I am comparing A is greater than B, तो क्या A B से ग्रेटर है? नहीं, A B से ग्रेटर नहीं है, B ग्रेटर है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और एक और कंपैरिजन, A is greater than equal to B,
क्या ए बी से ग्रेटर है? नहीं। क्या ए बी के इक्वल है? नहीं। तो दोनों ही केस फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एक और कंपैरिजन लेते हैं, ए इज लेसर देन बी। क्या ए बी से लेसर है? यस, ए इज लेसर देन बी। ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। और ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए बी से क्या इक्वल है? इक्वल तो नहीं है, पर लेस तो है। मतलब एक हमारा जो कंपैरिजन है वो ट्रू हो रहा है, एक कंपैरिजन ट्रू हो रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखते हैं। मैं आपको आइडियली में लेके चलता हूं, आइडियली में आपको समझ में आएगा किस तरह से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, a इज इक्वल टू 12 and b is equal to 13. Now I am check a equal to b. So it will give false because a is not equal to b. Now I am checking a not equal to b. So this will give true because a and b are not equal. Now I am checking a is greater than b. So this will give false because a is not greater than b. A is smaller than b. Now I am checking a is less than b. This will give true because a is less than b. एक हम कंपैरिजन का भी कर लेते हैं, जिसमें दो कंपैरिजन हो रहे हैं। दो कंपैरिजन के लिए आप क्या करोगे? आप चेक करोगे a is lesser than equal to b। तो a b से लेस तो है, इक्वल नहीं है, पर a b से लेस तो है तो ठीक है, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। इसका आंसर क्या आ गया है? ट्रू आ गया। तो आई थिंक आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स भी समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे स्विच करते हैं, दैट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं अगर आपको एक वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू में असाइन करनी है, मींस आपको b की वैल्यू, you have two two operands a and b, and you want to assign the value of b into a। b की वैल्यू आप किस में डालना चाहते हो? b की वैल्यू आप a में डालना चाहते हो। तो b की वैल्यू अगर आप a में डालना चाहते हो तो इसके लिए आपको कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहां से क्या होता है, सपोज b के अंदर आपकी वैल्यू कोई 15 स्टोर है। नाउ यू राइट a is equal to b। this means this value of b, that is 15 value copy into a also will become 15। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझाए थे, तो किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर को आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हो। इसी चीज को बोला जाता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब किसी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर को जोड़ देते हो, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं क्या ले रहा हूं? a equal to 12। now what I am doing, I am using this augmented assignment operator, so I write a plus equal to 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको इसको इस तरह से वैल्यूट करना है, a is equal to a plus 1। तो जो भी यहाँ पे ऑपरेटर है और जो यहाँ पे आपका ऑपरेंड है, उसको क्या करो? राइट हैंड साइड पे ले आओ, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उसमें जोड़ दो ऑपरेटर के साथ। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो राइट a इंटू इक्वल टू b। तो यहाँ पे इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करोगे? a इज इक्वल टू a इंटू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब हम क्या करते हैं, हम इसी चीज को आइडियली में ले जाते हैं और बेटर समझने के लिए। इसके लिए हम अपना आइडियली ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी वैसे दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, ए और बी। अगर सपोज मैं ए की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, ए की वैल्यू चेंज करके बी की वैल्यू ए में कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी। तो ए के अंदर अब क्या वैल्यू आ चुकी है, ए के अंदर वैल्यू आ चुकी है 13। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ए के अंदर क्या वैल्यू है, तो ए के अंदर वैल्यू आ चुकी है 13। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या होते हैं ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर? अभी मैंने आपको बताया था, मैं क्या करूंगा, ए प्लस इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा, ये a की वैल्यू में, a की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा, a की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा, अब a की वैल्यू क्या हो चुकी है 14, 13 में एक ऐड हुआ, a की वैल्यू क्या हो चुकी है 14। तो यहाँ पे आप जब a की वैल्यू देखोगे, a की वैल्यू हो गई है 14। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर समझ में आए होंगे। अभी हम कुछ और ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं सारे ऑपरेटर्स आपको एक साथ कराता हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हो सकता है आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए और आपको अच्छे से कंटेंट को समझाने के लिए मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करना है, ताकि और बच्चे भी इनका फ़ायदा उठा सकें। ओके, दैट्स इट। आई एम रोहित, साइनिंग ऑफ।